Hi, good evening, students. Tomorrow, the CBSE board exams, major subjects exams are starting. Today, now also, I am getting so many queries from our own students, as we have already practiced with the board sample OMRs and all other things. Still, they are having so many queries. So that's why I am making this small video so that you can go through that all the instructions properly, all the important instructions properly, when to reach the exam center, what to carry, how we can manage the timing, and how to fill the OMR properly. These all things I am covering here, so please carefully watch this. And this is for both class 10 12, the same things will applicable, so I am discussing that, please. So dear students, you have to reach the exam center tomorrow for the first exam, or the mostly at the major exams at 10 o'clock itself in the exam center. As you all know that we are following all the COVID protocols and everything, so it will take some time to measure the temperature, right? There will be thermo scanning will be there, and the people will mention the temperature. They will note down the temperature also, each and every students, so it will surely take some time, right? So what you have to do, that you have to reach early enough so that you can enter the exam hall without any problem. Maintain all the COVID protocol. By maintaining all the COVID protocol, that means social distancing, everything, you can keep that properly. So please be at the exam center at 10 a.m. itself, right? Then outside the exam center, the school, there will be seating arrangements. Already it will be pasted outside that exam center, right? So in our school also we are practicing the same way. In other schools also I am expecting the same. So make sure your room number according to your roll number, where it will be, whether it is in the ground floor, whether it is the first floor, where it is actually, right? And again I'm discussing that, right? So you have to follow the COVID protocol properly. That means you have to wear the mask, right, and maintain the social distancing. There will be circles made in the ground itself, right? So please follow the distance properly, right, as the COVID cases are increasing nowadays. So please follow the COVID protocol properly, right? And outside the school also, no gathering is actually allowed. You have to keep that minimum distance. The social distancing is applicable there also. So when you are checking the seating arrangement or anything, please make sure, right, you are following the COVID protocol, right? So मैंने again आपको बता रही है, इसी वीडियो में मैं सिर्फ मेक श्योर कर रही है जो आपको कब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है, राइट, और क्या क्या थिंग्स आप कैरी कर सकते हैं, और क्या क्या थिंग्स आपको देखना है, वो सब कुछ है मैं बता रही है. अगेन स्टूडेंट्स को पहले एग्ज़ाम है, एटलीस्ट पहले एग्ज़ाम में 10 o'clock ही पहुंचाए. आपका 11 o'clock से एग्ज़ाम करेक्टली शुरू होगा. सो प्लीज़ बी एट एग्ज़ाम सेंटर एट 10 o'clock, राइट. मिनिमम 10:15 तक आपको पहुंचना है हर एग्ज़ाम में. फर्स्ट एग्ज़ाम में थोड़ा सा जल्दी आ जाओ 10 o'clock itself, राइट. सो देयर विल बी थर्मल स्कैनिंग, तो आपका टेम्परेचर भी मेंटेन नोट करेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा. सर्कल्स बना हुआ होगा, तो सो दैट यू कैन मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, राइट. And don't take any of the barred items in the exam center. I have already sent my students also the list of that barred items and everything. I hope all other schools also provided, right? So you can see here what are the things permitted in the exam center. First of all, you have to take your admit card. Even school ID card is there, that also permitted, right? Or you can even carry transparent pouch for pencils, pen or any other things, right? वो सब कुछ आप ले सकती है. Blue or black ball point pen, right? Now that actually gel pen भी carry कर सकते हैं, but I recommend that gel pen की कोई ज़रूरत नहीं है आपको exam hall में, as you have to darken the circles with ballpoint pen only. Gel pen it can be easily spread, so please don't use any gel pen. Use blue or black ballpoint pen itself, right? और एनालॉग वॉच, कोई भी डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है. डिजिटल कोई भी चीज़, राइट, डिजिटल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. सिर्फ एनालॉग वॉच आप ले सकती है, राइट, और वो भी एक ट्रांसपेरेंट पाउच में यू कैन ईजिली कैरी, राइट. और पानी पीने के लिए ओब्वियसली कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से यू हैव टू कैरी योर ऑन वाटर बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए, राइट. और उसके अलावा मेट्रो बस कार्ड ऐसे कुछ है तो यू कैन कैरी दैट. इन आवर स्कूल्स आई ऑलरेडी इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, यू कैन कैरी नॉर्मल वॉच एंड ऑल, बट उसके अलावा भी हर क्लासरूम में नॉर्मली कोई भी बोर्ड एग्जाम में स्कूल्स क्लॉक और वॉच
अरेंज कर देती है, सो यू कैन यूज़ दैट इफ़ यू आर नॉट कैरिंग वॉच, राइट। उसके अलावा भी इन्विजिलेटर्स श्योरली आपको टाइम बताएगा, आपको नहीं बता रही, यू कैन आस्क दैट हाउ मच टाइम इज़ रिमाइनिंग मैम और सर, राइट। तो उन लोग भी आपको करेक्टली इन्फॉर्मेशन दे देंगे, राइट। नाउ बार्ड आइटम्स के बारे में, कोई सा भी स्टेशनरी आइटम्स क्लास में अलाउड नहीं है, दैट मीन्स बिट्स और शीट्स ऑफ पेपर्स, कैलकुलेटर, डिजिटल और एनी कैलकुलेटर्स, पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर्स, नथिंग इज़ अलाउड एक्चुअली। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ऐसे कुछ भी चीज़ेस नहीं है। नॉर्मली इफ़ यू हैव कैरीड दैट, सो एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने की पहले आपको पेरेंट्स को वो दे देना, राइट। एंटर कर दिया तो आपको किधर भी वो कीप नहीं कर सकती, बेटर आपको पेरेंट्स को उसके पहले दे दो, राइट। सो वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स, पाउचेस कुछ भी अलाउड नहीं है, राइट। सो ईटेबल्स, पैकेट्स कुछ भी अलाउड नहीं है, राइट। सो आपको ऐसे कुछ भी आप लेकर आइए अंदर, इट विल बी कंसिडर्ड एज UFM, अनफेयर मीन्स में कंसिडर करेगा, तो प्लीज़ हैंड ओवर इट बिफोर यू एंटर इन टू द एग्जाम हॉल, राइट। और एक और चीज़ है, कोई भी पेरेंट्स एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, तो दे हैव टू वेट outside the gate only, again with actually strictly follow the COVID protocol, right. now कब पहुंचना है, एक्चुअली 9:45 से आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिलती है, एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलती है टिल 10:45 तक, 10:45 लास्ट एंट्री है, राइट। और एग्ज़ाम रूम में आपको कब एंट्री मिलेगा, एग्ज़ाम रूम में आपको 10:30 को एंट्री मिलेगा, राइट। 10:45 लास्ट एंट्री है, उसके बाद कोई भी बच्चों को एग्ज़ाम रूम में एंट्री नहीं दे देगा, राइट। सो लास्ट एंट्री विल एट 10:45, यू हैव टू मेक श्योर, राइट। 10:45 से 11 o'clock तक आपका इन्विजिलेटर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपका क्लासरूम में आपका एडमिट कार्ड और ऑल अदर थिंग्स, यू डोंट हैव एनी अदर थिंग्स, वो परमिटेड के आइटम्स के अलावा और कुछ नहीं है, वो मेक श्योर करेगा, राइट। सो बी ऑन टाइम, राइट। 10:30 से 10:45 तक फर्स्ट एग्जाम में दे कैन टेक दैट टाइम ऑल्सो, सो 10:45 to 11 o'clock दे विल मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स, राइट। फिर आपका इन्विजिलेटर्स, राइट, 11 o'clock आपका क्वेश्चन पेपर की फोल्डर ओपन करेगा, OMR पहले दे देंगी, और उसके बाद 11:10 को आपका क्वेश्चन पेपर्स दे देगा। OMR मिलने के बाद प्लीज़ मेक श्योर उसमें आपको क्या क्या लिखना है, नीचे एक डिक्लेरेशन है, आई विल शो यू दैट, वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। एक डिक्लेरेशन है और एक क्वेश्चन बुकलेट के लिए नंबर लिखने के लिए एक जगह छोड़ दिया है, राइट। और आपका सिग्नेचर चाहिए, सिर्फ ये 3 ही आइटम्स आपको OMR में फिल करना है, राइट। नेक्स्ट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा 11:10 से 11:30 तक, दैट मीन्स आराम से 20 मिनट्स रीडिंग टाइम आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। 11:30 को आप एग्ज़ाम लिख सकती है, स्टार्ट कर सकती है। आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। क्वेश्चन पेपर में और OMR शीट में कोई भी तरह से स्क्रैच और राइटिंग्स कुछ भी अलाउड नहीं है। इफ़ यू नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस और आपको कोई भी हिंट्स लिखना है क्वेश्चन रीड की टाइम में, कुछ भी लिखना है, तो एडिशनल A4 साइज पेपर्स विल बी प्रोवाइडेड, उसमें स्कूल सील होगा और इन्विजिलेटर की साइन भी होगा, तो उसमें आप लिख सकती है क्वेश्चन नंबर लिखकर, आपको कुछ भी हिंट्स वगैरह और कुछ भी नोट करना है तो आप उसी शीट में कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में और OMR शीट में कुछ भी अलाउड नहीं है, राइट। और बाकी सब कुछ इन्विजिलेटर्स की काम है। और 1 o'clock योर क्लोजिंग टाइम विल बी द बेटर यू फिनिश ऑल योर वर्क्स, रिटर्न वर्क वगैरह 12:45 तक आपको कंप्लीट करना है, सो दैट आपको 50 मिनट्स की रीडिंग टाइम मिले, राइट। मैं वापस बताऊंगी आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट। नाउ अगेन आई एम टेलिंग, राइट, सो मेक श्योर यू हैव टेकन योर एडमिट कार्ड, राइट। सो घर से निकलने के पहले मेक श्योर कर लेना आपने आपका एडमिट कार्ड ले लिया है, एंड मिनिमम 2 और टू ब्लैक और ब्लू, मिनिमम 2, क्योंकि कभी कभी पेन भी धोखा दे सकती है, तो प्लीज़ एटलीस्ट 2 कैरी कर लेना। पेंसिल चाहिए तो पेंसिल भी आप कैरी कर सकती है, बट पेंसिल की यूज़, राइट, इट विल बी कंसिडर्ड एज UFM, अनफेयर मीन्स, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें OMR शीट में, राइट। और ये कैरी करने के लिए यू कैन टेक ट्रांसपेरेंट पाउचेस ऑल्सो, राइट। अगेन मैंने आपको बता दिया था ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल में आप पानी ले सकती हैं। इसके अलावा प्लीज़ इफ़ पॉसिबल प्लीज़ कैरी ट्रांसपेरेंट बोतल में थोड़ा सा सैनिटाइज़र आप कैरी कर सकती है। उसके अलावा हर स्कूल में भी सैनिटाइज़र अलग अलग जगह में रखा हुआ होगा फॉर योर ऑन सेफ्टी, तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल दिस बेसिक प्रोटेक्शंस, राइट। तो मेक श्योर कर लेना आपने OMR करेक्टली फिल कर रही है, उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड द डिक्लेरेशन, राइट, एंड सिग्नेचर, ये मैं बाद में आपको एक और बार दिखाएंगी कैसे फिल करना है, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट
इस बार 10th की OMR शीट और आपका क्वेश्चन बुकलेट, राइट, क्वेश्चन बुकलेट भी स्कूल में और सेल्फ सेंटर है और किधर भी है, मोस्ट ऑफ द स्कूल में सेल्फ सेंटर है, उधर ही प्रिंट हो रही है। तो प्रिंटिंग के टाइम में देयर इज ए चांसेस ऑफ गेटिंग एरर, राइट। सो कभी कभी मिस प्रिंट हो सकती है, राइट, और कभी कभी कुछ लास्ट पेज छोड़ सकती है, राइट, प्रिंटिंग में कुछ एरर हो गया, तो ये सब कुछ पेज नंबर करेक्टली है, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर आपको 11-10 को क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद प्लीज़, इट्स ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही है, क्योंकि ये प्रिंट होकर आ रही है तो उसमें मिस प्रिंटिंग की चांसेस है। कभी कभी वो इंक इतना ढंग से नहीं हुआ है, आपको रीड नहीं कर पाइए, और कुछ पेज पीछे वन साइड, मोस्ट ऑफ द स्कूल में सिर्फ वन साइड प्रिंट होगा, एज टू मेक श्योर द स्पीड ऑफ द प्रिंटिंग, तो एक साइड ही प्रिंट हो सकती है, तो इसलिए वो आप मेक श्योर कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर, राइट। द मोस्टली द क्वेश्चन विल ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 60 क्वेश्चंस, तो मेक श्योर करना आपका क्वेश्चन पेपर में भी 60 क्वेश्चंस है और वो भी सब कुछ करेक्टली प्रिंटेड है, राइट, आप रीड कर सकते हैं, ये मेक श्योर कर लेना। इफ़ ऐसे नहीं है उसी वक्त तो आपका AS को, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करे, दैट इज़ द इन्विजिलेटर, वही है इन्विजिलेटर आपका क्लासरूम की, उनको इन्फॉर्म कर दिए बाद में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में एक बुकलेट नंबर होती है, एक बार आप लिखने के बाद वो चेंज नहीं कर सकती, बाद में आपने वो ध्यान नहीं दिया है तो उसमें कुछ भी मिस्टेक, वो अपना ही रिस्क है, उसमें किसी और की, इन्विजिलेटर की किसी की भी गलती नहीं है, वो अपना ही रिस्क में आएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये मेक श्योर कर दीजिए आपका क्वेश्चन बुकलेट में इनफ क्वेश्चन, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, वॉट एवर इट इज़, हर सेक्शन में जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्री बोर्ड भी लिखा है तो आपको पता है हर कुछ सेक्शन में कितना क्वेश्चन होती है, तो वो मेक श्योर कर दीजिए करेक्टली है और करेक्टली वो प्रिंटेड है, राइट। अगेन वन मोर थिंग्स, आपको OMR मिलेगा, एनीवे AS की ड्यूटी है वो मेक श्योर करेगी, बट फिर भी आपको OMR में ऑल द डिटेल्स, द नेम, रोल नंबर ऑफ योर्स, इट्स ऑलरेडी प्री फिल्ड, तो आपको देखना है आपको करेक्टली OMR, उसमें सब्जेक्ट सोशल साइंस की पेपर है कल 30 को, तो सोशल साइंस की सब्जेक्ट कोड लिखा है, राइट, और डेट कल की है, एक बार मेक श्योर कर लेना, क्योंकि प्रिंटिंग स्कूल से हो रही है, सो देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग मिस्टेक, बट इसी केस में नहीं होगा, सिर्फ एक ही दिन की OMR प्रिंट हुआ है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, बट प्लीज़ मेक श्योर दिस इज द थिंग यू हैव डन। नाउ नेक्स्ट, now how to fill the OMR, right, so here मैंने सैम्पल OMR, मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये सैम्पल OMR पहले फिल कर प्रैक्टिस किया है, तो इन आवर स्कूल में भी लास्ट एग्जाम में मिनिमम हमने OMR बच्चों से प्रैक्टिस करवाए, फिर भी बहुत सारी बच्चों को बहुत सारी डाउट है, आज भी मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैम क्या करना है, कैसे करना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश किया है। सो मैं अगेन रिपीट कर रही है, कोई भी बच्चों को डाउट है तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, राइट। सो दीज ऑल पोर्शंस आर एक्चुअली प्री फिल्ड है, ये पूरा प्री फिल्ड है, इसमें आपको कोई भी डाउट की कोई चांसेस नहीं है, ये पूरा का पूरा प्री फिल्ड होकर ही आती है, राइट। सो फिर ये सिर्फ ये सेक्शन आप देख सकती है, राइट, ये सिर्फ ये सेक्शन, राइट, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको लिखना है, राइट। उसके अलावा आपको इधर आई कन्फर्म, राइट, आप इधर आई कन्फर्म दैट, सॉरी मैं आपको ब्लू वही इंक ले लेगा एक्चुअली, एक मिनट, राइट, आई डोंट हैव दैट एनी ब्लैक इंक, आई विल टेक, राइट, आई कन्फर्म, इधर जो है वो आपको वापस लिखना है इन योर ओन हैंड राइटिंग, राइट, आई कन्फर्म दैट, राइट, ऑल पर्टिकुलर्स, मेरे को इधर थोड़ा सा मुश्किल है लिखने के लिए, एज आई एम यूजिंग iPad, राइट, गिवन अबव आर करेक्ट, ये पूरा लिखना है आपको जो इधर दिया हुआ है, सो प्लीज़ मेक श्योर ये जो दिया हुआ है यही लिखना है वापस, आप मत सोचना ये ऑलरेडी दिया है क्यों लिखना है, आपको वापस वो लिखना है, राइट, पूरा रात ना शॉर्ट लेटर में इधर तक ही लिख लेना, क्योंकि इधर आपका सिग्नेचर करने की जगह है, तो इफ़ इधर पूरा नहीं हो रही है नेक्स्ट लाइन में छोटा कर आपको लिख सकती है, राइट। उसके बाद रनिंग हैंड राइटिंग में, राइट, सो जो आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ वो सेम साइन आपको इधर करना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आप यूज़ कर सकती है, सिर्फ यही 2 काम आपको करना है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 11 o'clock आपको OMR डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसी वक्त आप ये दोनों काम पहले कर लेने, इसमें ये करने के लिए थोड़ा सा वेट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट पहले देना है तभी आप कर सकती है, सो आप मेक श्योर कर देना, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन बुकलेट देने के टाइम में पूरा पेपर्स है वो चेक कर देना, राइट। नाउ कैसे फिल करना है, राइट,
आपका क्वेश्चन में आपको फॉर एग्जांपल आपका रिस्पॉन्स राइट ए है, राइट, तो मैंने ए रिस्पॉन्स पहले कोई फर्स्ट आपको 20 मिनट्स रीडिंग टाइम, अगेन मैं बता रही है 20 मिनट्स रीडिंग टाइम है, प्लीज़ उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। उसी वक्त ही डिसाइड करें हर सेक्शन से आपको कितना क्वेश्चंस जोड़ना है, कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस होती है, उसमें 20 अटेम्प्ट करना है, तो पहले डिसाइड कर दीजिए 100% श्योर वाला क्वेश्चंस, राइट। आप उसी वक्त ही उसका ऑर्डर हमेशा फॉलो कर दीजिए। पहले आप डार्कन करें, फिर एक स्टार बॉक्स इज देयर, राइट। ये स्टार बॉक्स एक्चुअली मेंट फॉर राइटिंग योर रिस्पॉन्स, राइट। वो है एक्चुअली हमारा हीरो, सच बोले तो ये स्टार बॉक्स है हमारा हीरो, बिकॉज इसमें मेंशन किया है वो है फाइनल आंसर्स। एंड हैश बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को फिल करना है, राइट। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फिल दैट। इधर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। तो आपका करेक्ट पिक्चर्स दिया हुआ है, यू कैन सी दैट। आपका ऑप्शंस ए है तो ए फिल दैट ना, उसमें डार्कन कर दीजिए और इधर लिख लीजिए स्मॉल लेटर में ए। तो व्हेन यू आर राइटिंग प्लीज मेक श्योर दैट आपका स्मॉल लेटर ए ही लिखे, राइट। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ना तो ए है ना तो डी है, सो प्लीज डोंट राइट दैट। ए ही लिखना चाहिए, बी लिखना चाहिए, सी एंड डी तो थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए सो दैट उसमें क्लियरली डिफ्रेंसिएशन दिखे। स्मॉल लेटर से ही लिखना है, राइट। उसके बाद आपको दैट ना नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकती है। तो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट आप कभी कभी ऐसे लिखती है, आपको ए ऑप्शन आपने डार्कन कर दिया बट उसके बाद आपको लग रही है बी इज़ द करेक्ट वन, तो आप इधर अगेन डार्कन करने की कोशिश मत कर दीजिए। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इधर करेक्ट ऑप्शन लिखना है विच विल ऑल्सो कंसिडर द करेक्ट आंसर। और उसके बाद आप कभी कभी ऐसे भी हो सकती है, मैंने पूरा लिख लिया, इधर भी भर दिया, डार्कन भी कर दिया, इधर मैंने लिख लिया, बट फिर भी लग रही है यार इसमें रिस्क हो सकती है, देयर इज एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, राइट, मेक द अनअटेम्प्टेड हैश बॉक्स, राइट। सो उसमें कर दीजिए, सो इट विल नॉट कंसिडर्ड एज एक्चुअली अटेम्प्टेड, सो वो इवैल्यूएट नहीं करेगा, राइट। और इसके बीच में कोई भी क्रॉस मार्क और टिक मार्क कुछ भी दैट आधा भरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। जब भरने के टाइम अगेन माय सजेशन इज़ दैट आपका ये पूरा हॉल है, दैट सर्कल है, आप एक साइड से भरना शुरू कर दीजिए, तो पूरा भरने के बाद लास्ट एक गोला बना दीजिए, सो दैट विल बी इट विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। आपका मर्जी आपकी तरह से कर सकते हैं, बट दिस विल बी मोर ईजी, राइट। आपको तो इधर यू कैन सी दैट हर एक जगह में यू कैन सी दैट टिक अलाउड नहीं है, राइट। सो इसमें आप जो कुछ भी लिखा है, राइट, आप इधर देख लो, आपने क्रॉस कर दीजिए या टिक कर दिया, ये सब कुछ, बट फाइनल आंसर विल बी विच इज़ रिटन इन द बॉक्स, तो डी विल बी कंसिडर्ड एज डी। इधर आप देख ले ए, राइट, इधर भी ये सब कुछ भी हमको मायने रखती, ये सी विच विल बी कंसिडर्ड एज सी। इधर भी आप देख ले बी, नेक्स्ट में भी बी, राइट। सो दीज ऑल आर एक्चुअली, इसमें से आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा, जो हम इसी बॉक्स में रिस्पॉन्स में लिखती है, स्टार बॉक्स में, स्टार इज़ आवर हीरो, राइट, स्टार हमेशा हीरो ही है, वो ही कंसिडर्ड दैट ना द फाइनल वन, राइट। बट एक चीज़ आपको याद रखना, आपने ये सारे भर दिया, उसके बाद ये फिल कर दिया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अनअटेम्प्टेड। वो जो है ये थर्ड केस आपने ऑलरेडी देख लिया है, दिस विल बी द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट में आपको रिमेंबर करना है, बाकी कुछ भी चीज़ है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट। सो प्लीज़ वंस अगेन यू कैन गो थ्रू 2 मिनट्स आई विल, राइट। मोस्टली स्कूल से ये सर्कुलर ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो ऑलमोस्ट बच्चे ने देखा हो गया, राइट। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट इट विल बी, कैसे भी किया है आपको ये कंसिडर द सी एज दैट वन, राइट। और एक और चीज़ बच्चे मोस्टली छोड़ देती है, कभी कभी बच्चे कोई भी ब्लॉक्स अटेम्प्ट नहीं करती है, और नहीं है तो ये डार्कन वाला, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज UFM, अनफेयर मीन्स। एक्चुअली इसका ये AS की ड्यूटी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है, बच्चे ऐसे UFM नहीं कर रही है, दैट मीन्स उन्होंने कोई भी बॉक्स ऐसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं ऐसे छोड़ा है, दैट मीन्स आइदर आपको इसमें अनअटेम्प्टेड तो मार्क करना ही है, राइट, ऐसे छोड़ा नहीं है। सो प्लीज़ आप भी मेक श्योर कर दीजिए बिफोर द फिनिशिंग द एग्जाम, ऐसे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चंस दिया है, उसमें 20 अटेम्प्ट करना है, दैट मीन्स सिर्फ अनअटेम्प्टेड 4 ही होना चाहिए, राइट। तो आपको वो मेक श्योर करना है, राइट। एंड अगेन मैं बता रही, कुछ बच्चे ऐसे बोला मैंने कभी कभी ऐसे पूरा लिख लिया, उसके बाद मैंने बी क्रॉस करके सी लिखा है, कोई भी ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। आपने ऐसे लिखा है, इट विल बी कंसिडर्ड अटेम्प्टेड एंड रॉन्ग, तो प्लीज़ डोंट डू इट। कोई भी ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, उसको अटेम्प्टेड कंसिडर करेगा और इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ आपका मन में होना चाहिए, राइट। सो आई विल शो यू इधर कैसे है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, इधर देख लो, मैंने इधर बी भर दिया, राइट।
सो इधर मैंने स्मॉल लेटर में बी लिख लिया, करेक्ट, राइट। और मैंने ए भर दिया, मेरे को लग रहा है यार ए नहीं है मेरा करेक्ट आंसर, सी है। तो मैंने क्या करना है, इधर डार्कन करने की कोशिश ही मत करना, डायरेक्टली मेरा आंसर इधर लिख लीजिए, राइट। सो कभी कभी मैंने ये पूरा छोड़ दिया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्टेड एंड अनफेयर मीन्स में कंसिडर करेगा, राइट। और कभी कभी मैंने ये पूरा लिख लिया, ये भी लिख लिया, बट मेरे को लग रही है ये कुछ भी नहीं है, ये आंसर मेरे को नहीं चाहिए, तो प्लीज़ डार्कन दिस। सो मेक श्योर दिस ऑल थिंग्स परफेक्टली। तो इसलिए मैंने ये बॉक्स दिया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट मीन्स आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मेरा ये बॉक्स फाइनल कंसिडर होगा और ये अनअटेम्प्टेड वन, ये दोनों पहले आपको मेन इंपॉर्टेंस देना है, राइट। मोस्टली आपको एक चीज़ है एक्चुअली एडवाइसेबल नहीं है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रही है लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, तब डार्कन करने के लिए कोशिश मत कर दीजिए, डायरेक्टली आप आंसर इधर फिल कर दीजिए, राइट। बट इफ़ पॉसिबल है दोनों कर दीजिए, सो दैट यू कैन मैनेज द टाइमिंग ऑल्सो। नाउ आपका बेल के वगैरह एक बार आप ध्यान दे सकती है, राइट। आपका लास्ट एंट्री के टाइम में देयर विल बी ए लॉन्ग बेल एट स्कूल, राइट। द OMR डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में देयर विल बी सिंगल बेल, राइट। तो आपको 11:30 शुरू होने के पहले, दैट मीन्स रीडिंग टाइम फिनिश होने के बाद भी देयर विल बी ए लॉन्ग बेल, राइट। लास्ट में 10 मिनट्स बिफोर द एग्जाम देयर विल बी ए सिंगल बेल एंड एट लास्ट देयर विल बी ए लॉन्ग बेल। सो दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो यू कैन ऑल्सो नोट, सो उसमें भी आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रही है, पहले आप क्वेश्चन बुकलेट चेक कर दीजिए पूरा है, ब्लू और ब्लैक पेन वो आपको कंपलसरी है, क्वेश्चन पेपर डिफेक्टिव नहीं है, करेक्ट नंबर ऑफ पेजेस क्वेश्चंस है, राइट। 20 मिनट्स रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर देना, बिकॉज टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा हम्बल सजेशन है, इफ़ स्टूडेंट्स को पॉसिबल है तो टोटल आपका सेक्शंस को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करके मन में एक आइडिया रखा है। सो 11:30 रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर दे, बिकॉज दैट्स अ मेन थिंग। इफ़ यू यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम प्रॉपरली, आपका काम आधा फिनिश कर सकती है, क्योंकि आपको उसमें से आइडिया मिल जाएगा मेरा 100% श्योर वाला क्वेश्चन कौन सी है, वो पहले अटेम्प्ट करें, राइट। एंड फॉलो द ऑर्डर, पहले डार्कन करो, फिर स्टार बॉक्स, फिर उसके बाद हैश बॉक्स, लास्ट में हैश बॉक्स मेक श्योर करना। तो वंस यू फिनिश दैट, उसके बाद आप एक बार टैली करें, हाँ मेरा अनअटेम्प्टेड और अटेम्प्टेड मिलकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिनिश हो रही है, राइट। सो टोटल मोस्टली 50, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में 50 है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होती है, तो एक दिन पहले वो चेक कर दीजिए। और आपका क्वेश्चन पेपर के पहले डायरेक्शंस दिया हुआ है, एग्ज़ाम के पहले आपका इन्विजिलेटर वो पूरा डायरेक्शन एक बार आपको पढ़कर सुनाएगा, तो कुछ भी डाउट है तो दैट टाइम यू कैन आस्क दैट, राइट। उनका ड्यूटी है वो एक बार आपको अनाउंस करेगी क्लास में क्या क्या है, कैसे फिल करना है और क्या क्या डायरेक्शंस है, राइट। फिर एक और चीज़ आपको रिमेंबर करना है, राइट। सो बुकलेट नंबर, क्वेश्चन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ आपको याद रहे। फिर एक है अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट ऑलरेडी प्री फिल्ड है, राइट। सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ आपका सब्जेक्ट रोल नंबर है, बच्चे की नाम और सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन कोड, ये सब कुछ प्री फिल्ड है। और आपका सिर्फ हर दिन की एक सब्जेक्ट कोड होगा, सब्जेक्ट 1 है तो इधर आपको एक जगह होगा जिधर क्वेश्चन नंबर बुकलेट नंबर लिखना है, वो आपके हाथ से ही लिखना है। फिर OMR बुकलेट नंबर लिखना है, फिर उसके साइड में साइन करना है, राइट। तो ये 3 चीज़ भी बहुत केयरफुली कर दीजिए, बिकॉज आपका ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू द रीजनल ऑफिस फॉर चेकिंग, तो प्लीज़ आप सीरियल नंबर और कोड नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर अच्छे से भर दीजिए, राइट। एंड लास्ट में फिनिश करने के टाइम हैश बॉक्स भी चेक कर दीजिए। सो अगेन मैं बता रही हूँ आपका पूरा टाइम 11:30 to 1 o'clock तक आपका पूरा टाइम, तो इसमें आप डिवाइड सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेक्शन ए और सेक्शन बी चाहे तो 12:15 तक फिनिश कर सकती है, राइट। 12:15 और 12:20 तक फिनिश कर सकती है, राइट। फिर सेक्शन सी और इवन सेक्शन डी भी है अबाउट 12:40, मैं एक बफर टाइम दे रही है 12:40, सो दैट मैक्सिमम टाइम 12:45 तक आपको फिनिश करना ही है, सो दैट आपको आराम से 15 मिनट्स मिले, राइट, फॉर रीडिंग, राइट, रीचेकिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो मोस्टली आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑल्सो विल चेक दैट आपने कोई UFM अनफेयर मीन्स नहीं किया है, उसमें जो खाली छोड़ा नहीं है, तो ये सब कुछ उन लोग भी चेक करेगी। उसी टाइम भी आप आपका टाइम वेस्ट मत करिए, उनको चेक करने दीजिए, सेम टाइम आप भी रीचेक कर देना। तो आपका टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बता रही है 20 मिनट रीडिंग टाइम यूटिलाइज वेरी वेल, राइट। तो फिर मन में ही रख लेना सेक्शन ए और बी कितने टाइम तक फिनिश करना है, 12:15 और 12:20 तक सेक्शन ए और बी फिनिश करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने 20 मिनट्स रीडिंग टाइम में पढ़ लिया है।
सेकेंड टाइम की कर वापस पढ़ ले, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ गलत किया है तो सेकेंड टाइम में यू हैव टू मेक श्योर योर आंसर इज करेक्ट, उसके बाद भरना है। 12:45 तक आपका एग्ज़ाम फिनिश होना है, सो दैट 50 मिनट्स आपको वापस यूटिलाइज करें रीचेकिंग के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। आपने ये सब कुछ थिंग्स नोटिस किया है, योर एग्जाम विल बी रियली गुड। सो प्लीज़ मेक श्योर ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। वंस अगेन ऑल द बेस्ट विशेस माई डियर स्टूडेंट्स, राइट, for tomorrow's exams and coming exams. All the best wishes. Thank you everyone.